آئیے میرے ساتھ نکالیے نیا عہد نامہ، مقدس پالوس رسول کا لکھا گیا گلتیوں کے نام خط، چوتھا باب اور چوتھے باب کی چوتھی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک آج ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ کلام مقدس میں ہم سبوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ ہاللیلویا! ایک دوسرے سے کہیں، آپ غلام نہیں، آپ بیٹا یا بیٹی ہیں۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ زوردار تالیاں بجائیے خدا کے کلام کے لیے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا! آج کا جو بابرکت ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے سپر نیچرل برتھ، مافوق الفطرت پیدائش۔ ویسے تو دنیا میں ہر ایک پیدائش خدا کا ایک بڑا معجزہ ہے، اور پوری دنیا میں 4 لاکھ سے زیادہ بچے تقریباً ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلین یعنی 8 ارب کے قریب ہو چکی ہے۔ ہاللیلویا! لیکن بائبل مقدس میں میرے عزیزوں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو خدا کے زبردست معجزے اور خدا کی قدرت کے باعث خدا نے بڑھاپے میں یا کمزوری کی حالت میں خدا نے اپنے لوگوں کو ماں اور باپ بننے کا فضل بخشا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ابراہم اور سارہ کی زندگی پر غور کریں تو خدا نے بڑھاپے میں جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ماں اور باپ بننے کی قوت ان کے اندر موجود نہ تھی، خدا نے بڑھاپے میں ان کو وعدے کا فرزند یعنی اسحاق ابراہم کے صلب سے بخش دیا۔ خدا نے منوہا اور اس کی بانج بیوی کو معجزانہ طور پر سمسون قاضی جیسا معجزانہ طور پر بیٹا بخشا، جو کہ بڑا زور آور اسرائیل میں سورما ہوا ہے۔ خدا نے الکانا اور حنا کو معجزانہ طور پر سیموئل نبی جیسا ایک زبردست لیڈر اسرائیل قوم کو بخشا۔ خدا نے زکریا کاہن اور اس کی بوڑھی بیوی الشبا کو بڑھاپے میں خدا نے یوحنا استباغی جیسا زبردست بیٹا بخش دیا، جس نے یسوع مسیح کی گواہی دی، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم جس پیدائش کے بارے میں بات کرنے کو ہیں وہ ان تمام پیدائشوں سے اتم ہے، ڈیفرنٹ ہے، سپیریئر ہے، یونیک ہے۔ اسی لیے اس پیدائش کا نام سپر نیچرل برتھ رکھا گیا ہے۔ ہاللیلویا! یہ پیدائش ایک ایسی پیدائش ہے
جو میل اور فیمیل کے ملاپ کے بغیر ہوئی ہے، اور اس پیدائش میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کا کوئی جسمانی باپ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا منجی کائنات خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. صرف یہی صفت کہ وہ میل اور فیمیل کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوا، یسوع کو تمام نبیوں سے، تمام پیغمبروں سے، تمام رسولوں سے اتم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی پیدائش مافوق الفطرت معجزے کے طور پر پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. ہاللیلویہ. آج ہم اس منفرد اور اس یونیک پیدائش کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ذکر جب ہمارے دلوں میں آتا ہے، ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہمارے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں، ہماری فکریں جاتی رہتی ہیں، ہماری پریشانیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ یکساں طور پر موجود رہنے والا خدا ہے. ابھی ہم نے پڑھا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا. میرے عزیزوں، خدا نے اس پوری دنیا کو سسٹمائز کیا ہوا ہے. خدا نے پوری دنیا کا ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم وائس 3 باب میں جائیں، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے سورج طلوع ہونے کا ایک وقت ہے اور غروب ہونے کا ایک وقت ہے. پھول کھلنے کا ایک وقت ہے اور مرجھا جانے کا ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. اٹ مینس خدا نے پوری دنیا کو ایک سسٹم کے تحت کنٹرول کر رکھا ہے. خدا ہر ایک کام کو اپنے وقت پر کرتا ہے. شاید ہم جلدی میں ہوتے ہیں، شاید ہم اپنا پیشنس لوز کر دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، خدا بڑے وقت پر ہماری زندگیوں میں انٹروین کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کو معجزوں سے بھر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں ابراہم کی، خدا نے جب ابراہم سے وعدہ کیا کہ میں تیرے صلب سے تجھے اسحاق تیرا بیٹا بخشوں گا، اس وقت اس کی عمر تقریباً 75 سال تھی. He was around 75 years old. لیکن جب میرے عزیزو خدا نے ابراہم کو وعدے کا فرزند بخشا، اس وقت اس کی عمر تقریباً 100 سال کی ہو چکی تھی. 25 سال ابراہم نے خدا کے وعدے کا انتظار کیا، لیکن جب خدا کو مناسب لگا، جب وقت پورا ہو گیا، خدا نے ابراہم کو اسحاق دیا اور اس کی زندگی کو شاد کر دیا. ہاللیلویہ. آج ہمارے پاس بہت سی درخواستیں آتی ہیں، پادری صاحب 2 سال سے اولاد نہیں ہے، 4 سال سے اولاد نہیں ہے، 20 سال سے اولاد نہیں ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایمان کے ساتھ، 2022 میں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کی گود میں بیٹے اور بیٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی. خدا اپنے وقت پر اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے. 2022 I declare in your lives خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے جلالی کام کرنے کو. اگر ہم بات کریں یوسف نبی کی، پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں یوسف نبی کو بیچا گیا، جھوٹے الزام یوسف نبی پر لگائے گئے، قید خانہ میں رہا. لیکن جب وقت پورا ہو گیا، خدا نے یوسف ہی کو اٹھایا اور مصر کا وزیر اعظم بنا دیا.
मुमकिन है आपकी जिंदगी के खिलाफ बहुत से झूठे इल्जाम लग रहे हों, मुमकिन है आपके खिलाफ बहुत से लोग सियासत कर रहे हों, अपने आप को गिराना चाह रहे हों, लेकिन आई डिक्लेयर 2022 में खुदा आपको ना सिर्फ आपके मुनसब पर बहाल करेगा बल्कि उससे भी ज्यादा प्रमोट करने को है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम दाऊद नबी की बात करें तो जब दाऊद नबी को मसा किया गया कि वो इस्राएल का बादशाह बनेगा, उस वक्त दाऊद नबी की उम्र तकरीबन 15 साल थी। और जब मसा किया गया उसके बाद हम देखते हैं बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत सी मुखालफतें दाऊद नबी को सहना पड़ी। लेकिन 15 साल की इंतजार के बाद जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने दाऊद नबी को इस्राएल का बादशाह बना दिया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। वही खुदा जिसने अब्राहम की जिंदगी में काम किया, वही खुदा जिसने यूसुफ को बहाल किया, वही खुदा जिसने दाऊद को एक चरवाहा से बादशाह बना दिया, वही खुदा कल आज अब तक यकसा है। वो आपको भी बादशाह बना सकता है, वो आपको भी बहाल कर सकता है, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको भी अनलिमिटेड ब्लेसिंग से सैर और असुदा कर सकता है। हालेलुया। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अब्राहम की तरह मैन ऑफ फेथ बनने की जरूरत है, ईमान के साथ। आज अगर खुदा मेरे साथ कलाम करे और वो पूरा ना हो, शायद मैं डाउट करना शुरू कर दूं, शक करना शुरू कर दूं कि खुदा भी वादा करके शायद भूल गया है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के सभी वादे हां और सच के साथ हैं। वो वादा जो खुदा ने बाइबल में किया था, वही वादा आपकी जिंदगी में भी खुदा पूरा करने को है। हालेलुया। अगर हम अयूब नबी की जिंदगी की बात करें, खुदा ने अयूब को, अबलीस को खुदा ने अलाउ किया कि वो अयूब की जिंदगी में इंटरवीन करे, उसकी जिंदगी में टेम्पटेशंस लेकर आए। एक बड़ा ट्रायल अयूब और उसके खानदान की जिंदगी में हम देखते हैं। लेकिन उस ट्रायल के बाद, उस बड़ी टेम्पटेशन और आजमाइश के बाद हम देखते हैं जब वो लगातार आसमानी खुदा का शुक्र अदा करता रहा, तो वही खुदा जिसका वो शुक्र अदा करता रहा, उसने अयूब को डबल ब्लेसिंग से सैर और असुदा कर दिया। हमारी जिंदगी में ट्रायल्स आ सकते हैं, हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस आ सकती हैं, हमारी जिंदगी में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अयूब नबी की तरह का दिल हो, खुदावंद देता है, खुदावंद ले लेता है, खुदावंद का नाम मुबारक हो, तो मेरे अजीजों, जिस खुदा ने अयूब को दोबारा डबल ब्लेसिंग से सैर और असुदा किया, वो मुझे और आपको भी कर सकता है। हम क्या करते हैं? हमारी जिंदगी में जरा सी लहरें आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, हम खुदा की नाशुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मुझे मालूम है, बाइबल में लिखा है, हमें मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी पाक मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं। हालेलुया। वो खुदा जो अब्राहम का खुदा है, यूसुफ का खुदा है, मूसा का खुदा है, नूह का खुदा है, दाऊद अयूब का खुदा है, वही खुदा इरफान का और आपका भी वही खुदा है। हालेलुया। डिसअपॉइंट नहीं होना, मायूस नहीं होना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। जिस खुदा ने पुराने अहदनामा में बड़े बड़े काम किए, वही खुदा नए अहद के लोगों की जिंदगी में भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर कर रहा था। यीशु मसीह एक जबरदस्त
मिशन के तहत इस दुनिया में आए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब काना गलील की शादी में गए, वहां पर मैं खत्म हो गई और यीशु मसीह को मौजज़े के लिए रिक्वेस्ट की गई। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। मैं सोच रहा था यीशु मसीह को अभी अपने वक्त का इंतजार करने की जरूरत है, मुझे और आपको कितनी ज्यादा जरूरत है। हम जरा जल्दी में होते हैं कि हमारी जिंदगी में मौजज़े फटाफटी हो जाएं, हमारी जिंदगी में जो हमारे दिल की मुरादें हैं फौरन पूरी हो जाएं। अगर हम मिनिस्ट्री में हैं, हम चाहते हैं कि हम रातों रात ही फेमस हो जाएं। हम चाहते हैं कि वो मौजज़े जो खुदा अपने अजीम खुदाम को इस्तेमाल करने के वसीला से कर रहा है, वो मौजज़े, वो शिफाएं जो खुदा पास्टर सालिक साहब को इस्तेमाल करके कर रहा है, वो मौजज़े मेरे थ्रू भी खुदावंद करना शुरू कर दे। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपने वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप किसी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, खानदानी तौर पर, अज़दवाजी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, रूहानी तौर पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा का कलाम आज हमसे, मुझसे और आपसे कहता है, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। हालेलुया। कितने हैं जो वादा करते हैं हम खुदा के वक्त का इंतजार करेंगे? आइए जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल के लिए, इस फेथ के लिए, इस पेशेंस के लिए जो खुदा ने आपको दिया है। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। हमें कुव्वत के लिबास का इंतजार करना है, ठहरे रहना है, दुआएं करनी है, रोजे रखने हैं, मैंने और आपने बाइबल स्टडी करनी है। कुव्वत का लिबास मिलेगा, पाकरू की नेमतें हमारी जिंदगी में आएंगी, पाकरू का फल हमारे कैरेक्टर में नजर आएगा। फिर वो काम जो यीशु मसीह करता रहा, वो काम मुझसे और आपसे भी सरजद होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? यीशु ने कहा था तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो मुझ पर ईमान रखता है वो काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। हालेलुया। कितने हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं? जोरदार तालियां बजाइए अपने ईमान के लिए। हालेलुया। आप यीशु पर ईमान रखने वाले लोग हैं। लिखा है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो क्या किया? तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने किसी रसूल के बेटे को नहीं, किसी पैगंबर के बेटे को नहीं, खुदा ने किसी लीडर के बेटे को नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह नासरी खुदा का इकलौता बेटा है? जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सी कौमें, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्वर नहीं करते। वो कहते हैं शायद ये कुफर बक रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा खुदा एक है, वो वाहिद खुदा है। ना ही उसकी कोई फिजिकली बीवी है और ना ही फिजिकली उसका कोई बेटा है। हम तो यीशु मसीह को खुदा का बेटा इसलिए कहते हैं कि वो खुदा का रूहानी बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मुझे एक गैर मसीही भाई से मेरी डिस्कशन हुई
और वो मुझे कहने लगा कि आप खुदावंद यीशु मसीह को कैसे खुदा का बेटा कहते हैं। मैंने उनसे कहा आप खुदा पर ईमान रखते हैं? उन्होंने कहा मैं रखता हूं। मैंने कहा वो बात जो खुदा कहे उस पर आपका यकीन है? उन्होंने कहा मेरा यकीन है। मैंने कहा आप इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं? उन्होंने कहा मैं ईमान रखता हूं। आप फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? उन्होंने कहा मैं फरिश्तों पर भी ईमान रखता हूं। नबियों पर, रसूलों पर ईमान रखते हैं? मैं रखता हूं। मैंने कहा आए मैं आपको बाइबल मुकद्दस में जो खुदा का ला तब्दील मोतबर कलाम है, जो खुदा का इल्हामी कलाम है, उसमें से बताऊंगा कि यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा है। हालेलुया। फिर मैंने उनको जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया वो रेफरेंस कोट किया। मैंने कहा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह जैसे ही पानी से ऊपर आए आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद यीशु मसीह पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई। आसमान पर कौन रहता है? खुदा रहता है। आसमान से आवाज आई कि यीशु मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मैं कह होन दसो। हालेलुया। जदों आसमान दा खुदा गवाही दे रहा है ए मेरा प्यारा पुत्र है, एदी सुनो, तो मैं कह दूसरा कौन हुंदा है जिहड़ा यीशु मसीह नूं खुदा दा पुत्र ना मने। हालेलुया। जबराइल फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, नासरत की मरियम के पास भेजा गया और कहता है सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जबराइल फरिश्ता गवाही दे रहा है वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक हुकूमत करेगा और यीशु की बादशाही का कभी इख्तिताम ना होगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है रहेगा नास दाती कर, रहेगा नास दाती कर मसीदा। सारी बादशाहियां खत्म हो जाएंगियां, सारे तख्त डिग जाएंगे, यीशु दा तख्त हमेशा तक कायम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर मैंने उनको नबियों की गवाही दी। मैंने कहा बहुत से नबी रसूल बाइबल मुकद्दस में दर्ज है जिन्होंने यीशु मसीह को खुदा का बेटा, इकलौता बेटा डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और यही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। हालेलुया। बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया कि बेटा कैसा होता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर मुकद्दस पतरस रसूल मत्ती 16वें बाब में यीशु मसीह पूछते हैं कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? शागिर्द कहते हैं, बाज कहते हैं तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, बाज कहते हैं तू एलिया है, बाज कहते हैं तू यिर्मयाह है, बाज कहते हैं तू नबियों में से एक है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा अच्छा लोग तो ये कहते हैं लेकिन मेरे शागिर्दों तुम क्या कहते हो? मुकद्दस पतरस रसूल कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
हालेलुया। फिर भी अगर किसी को शक है तो फिलिपियों 2 में लिखा है, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी यीशु ही बादशाह, यीशु ही खुदावंद, यीशु ही बेटा और यीशु ही मालिक है पूरी दुनिया का। बोलो खुदा यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने किसे भेजा? बोलिए, किसको भेजा? अपने बेटे को भेजा। वक्त पूरा हो गया। इट मीन्स जब पूरी दुनिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया में जाना था, सड़कें तामीर हो गई ताकि खुशखबरी का पैगाम, अंजील का पैगाम कौमों, कबीलों, उम्मतों में जा सके, तब राइट टाइम पर खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब सारी नबूवतें, जब सारी पेशन गोइयां पूरी हो गई, तब खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब पूरी दुनिया में सुलह और सलामती हो गई, तब खुदा ने अजीब मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे को भेज दिया था। हालेलुया। कितने लोगों की जिंदगी में खुदा का बेटा यीशु मसीह काम करता है? जोरदार तालियां बजाइए। जब वक्त पूरा हुआ, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और खास बात, बेटे के लिए जो औरत से पैदा हुआ। हालेलुया। लोगों की नस्लें उनके बाप से चलती है, लेकिन यीशु मसीह पूरी दुनिया में वो वाहिद केस है। इस जैसी पैदाइश ना ही हिस्ट्री में कोई नजर आती है, ना ही इस जैसी पैदाइश हाल में मौजूद है, और ना ही इस जैसी पैदाइश मुस्तकबिल में होगी। क्योंकि यीशु मसीह मर्द से नहीं बल्कि औरत से पैदा हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ है? जोरदार तालियां बजाइए अपने ईमान के लिए। हमारे ईमान का हिस्सा है। यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ। और औरत से पैदा क्यों हुआ? क्योंकि जब आदम ने नाफरमानी की, गुनाह किया, तो वही गुनाह ट्रांसफर होता हुआ सारी इंसानियत में फैल गया। इसलिए लिखा है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। तो फिर मसीहा के आने के लिए खुदा को कुछ डिफरेंट करने की जरूरत थी। इसीलिए खुदा ने एक औरत का, जो पाक तरीन औरत है, जो कंवारी है, उसका इंतखाब किया। क्यों इंतखाब किया? क्योंकि खुदा ने पैदाइश 3:15 में एक पेशन गोई, जो यीशु मसीह के मुतालिक सबसे पहली पेशन गोई थी, जो खुदा ने की थी, उसकी भी तकमील हो सके। खुदा ने खुद कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। किसकी नस्ल? नस्ल ते मर्द दी हुंदी है, लेकिन औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर। इसीलिए यशायाह नबी भी यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले पेशन गोई करते हैं, यशायाह 7:14 में। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामिला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। यशायाह भी पेशन गोई करता है, और जबराइल फरिश्ता भी खुदा के इलाही मकसद के मुताबिक, उस डिवाइन मिशन के मुताबिक नासरत की एक कंवारी के पास भेजा जाता है और उसको क्या कहता है? सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। हालेलुया। खुदावंद तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? फिर सारा मैसेज फरिश्ता
मुकद्दसा को देते हैं कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और यूं वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाइए। हालेलुया। ये मेल और फीमेल के मिलाप से नहीं, ये रूहुल कुद्स के नजूल के बायस, खुदा ताला की कुदरत के बायस होगा और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और जबराइल फरिश्ता खड़ा हो गया कि जैसे ही मुकद्दसा का रिप्लाई मुझे आए तब मैं यहां से जाऊं। और मुकद्दसा का रिप्लाई यूनिक रिप्लाई है, देखो मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हालेलुया। काश हमारे अंदर भी ये एटीट्यूड आ जाए, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होती चली जाए। हालेलुया। खुदावंद मेरे प्लान्स नहीं, तेरे प्लान्स मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में पूरे होते चले जाएं। खुदावंद मेरे पर्पसेस नहीं, तेरे पर्पसेस मेरे खानदान में पूरे होते चले जाएं। काश 2022 में हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली कर दें ताकि खुदा मुझे और आपको अपने पाकरू से भरना शुरू कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो खुदा ने किसे भेजा? अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। दुनिया में अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करता है कि यीशु मसीह औरत से, कंवारी औरत से पैदा नहीं हुआ, वो खुदा के जिंदा कलाम से इनकार करता है। वो यीशु मसीह की अलूहियत से इनकार करता है। वो खुशखबरी के पैगाम से इनकार करता है। वो अपनी नजात से इनकार करता है। कितने लोगों का ईमान है यीशु मसीह नासरी मुकद्दसा मरियम जो कंवारी थी उससे पैदा हुए? जोरदार तालियां बजाइए अपने ईमान के लिए। हालेलुया। और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। यीशु मसीह अकॉर्डिंग टू लॉ पैदा हुए। वो यहूदी खानदान में पैदा हुए, यहूदी खानदान, यहूदी रस्म और रिवाज में बड़े हुए, उसके मुताबिक उनका नाम रखा गया, उनका खतना किया गया। सारी परवरिश यीशु मसीह ने शरीयत के मुताबिक अपनी पाई है। और यीशु मसीह ने कहा मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आगे उसकी वजह लिखी हुई है कि क्यों? ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी क्यों इस दुनिया में आया? उसकी दो रीजंस, दो वजूहात इसी 5वीं आयत में लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि वो हमें रिडीम कर सके, हमारी रिडेम्पशन के लिए, हमारी मखलसी के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी बहाली के लिए, हमें शरीयत से आजाद करवाने के लिए, हमें गुनाह से आजाद करवाने के लिए, हमें मौत से आजाद करवाने के लिए, हमारी प्राइस पे करने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। इट मीन्स यीशु मसीह नासरी ने मेरी और आपकी प्राइस पे की है, कीमत अदा की है।
اور قیمت ادا کرنے کے لیے، پرائس پے کرنے کے لیے، ہمیں ریڈیم کرنے کے لیے سن لیس کا، بے گناہ، بے عیب اور بے داغ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے مقدس پطرس پہلا پطرس پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھتے ہیں، کیونکہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی، تمہاری ریڈیمشن، تمہاری پرائس فانی چیزوں سے نہیں، بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں، سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ سو یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میری اور آپ کی کیا کرے؟ پرائس پے کرے۔ بولیں یسوع مسیح میری قیمت ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول کرنتھیوں کے نام لکھے گئے خط میں کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مسکن اور روح القدس کا مقدس ہے، جو تم میں بسا ہوا ہے، جو تم میں رہتا ہے، اب تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ زوردار تالیاں بجائیے اس بڑے مشن کے لیے، پرائس پے کرنے کے لیے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے ہماری پرائس کس طرح پے کی گئی ہے؟ ہماری پرائس یسوع مسیح ناصری کے بیش قیمت خون سے ادا کی گئی ہے۔ وہ خون جس کا ایک قطرہ دشمن ابلیس کی ساری بادشاہی کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی پرائس، آپ کی ویلیو کیا ہے، تو آپ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں میری کوئی پرائس نہیں، کیونکہ میری پرائس یسوع کا خون ہے، اور یسوع کا خون انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ سو خدا نے ہمیں بنایا اور پھر ہماری پرائس بھی پے کی ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ کیا ہے؟ اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اٹ مینس خدا نے اس مشن کے تحت یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے خدا نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے، لے پالک، بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ ہی انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ کون؟ وہ جو یسوع پر ایمان لائے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کیا کر لیا ہے؟ اڈاپٹ کر لیا ہے، بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے۔ سو خدا ہمارا باپ ہے۔ اگر آگے ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ ابا یہ آرامی زبان کا لفظ ہے۔ ابا ہم اسے کہتے ہیں جو پوری فیملی کا گارڈین ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ سو اس لیے جب خدا نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے، خدا نے ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے، پھر ہم آسمان پر رہنے والے خدا یہوہ الوہیم کو ابا کہہ کر، اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔
और ये शर्फ, ये एजाज किसी और कौम के पास नहीं है, सिर्फ उनके पास है जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं। जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल के लिए, हालेलुया। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि क्या है, बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ, हालेलुया। सो खुदा हमारा बाप है, यीशु खुदा का बेटा, और हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। सो जो कुछ यीशु का है वो मेरा और आपका है, हालेलुया। हम खुदा के वारिस हैं। एक फैमिली में अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी हो तो वो बाप अपने बच्चों में इक्वल उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है। इट मींस जो कुछ यीशु का है वो मेरा और आपका है, हालेलुया। अब कोई अपने आप को गरीब तो नहीं कहेगा। यीशु मसीह के पास क्या है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, और वही इख्तियार मैं तुम्हें दिए जाता हूं। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वत और कुदरत पर क्या हो, गालिब आओ। जोरदार तालियां बजाइए इस एहसास के लिए। अपने आप को गरीब ना समझा करो। शायद इस दुनिया में हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखा करें कि हमारा खुदा जिसके पास सोने और चांदी के ज़खायर हैं, जिसने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, सारी दुनिया की दौलत को बनाया। आसमान उसका है, जमीन उसकी है, जमीन, कायनात और उसकी मामूरी उसकी है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा बादशाह है और हम उसके शहजादे और शहजादियां हैं, हालेलुया। सर मिलकर कहें कि मैं अमीर हूं, कहें मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि यहोवा यरी मेरा आसमानी बाप है। 2022 में वो मुझे मुहैया करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आज से मैं गरीब नहीं बल्कि अमीर हूं। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे यीशु मसीह नासरी के लिए, उसकी इस जबरदस्त पैदाइश के लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। वो ब्लेसिंग्स, वो फेवर्स जो हमें यीशु पर ईमान लाने के वसीला से रिसीव हुई हैं, हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। वो आपको तंदुरुस्त करने के लिए, वो आपको जोरावर करने के लिए, वो आपको तरोताजा करने के लिए, वो आपको बहाल करने के लिए, खुशहाल करने के लिए, वो आपको शाद करने के लिए, वो आपको नई खुशी देने के लिए, नया ताजा मस्सा देने के लिए, आपके दिल की मुरादें पूरी करने के लिए आपके दरमियान आया है। वो आपके बोझ लेने के लिए, आपकी फिक्रें रिमूव करने के लिए आपके दरमियान उतरा है। संतारा का शानदारा बलंदरा बाबा बाबा इंदेरे पे शानदारा बलंदरा बाबा बस इंतोरोको शांतारा बलंदरा बाबा। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे आने के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए, इस आग के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, इस मस्सा के लिए, तेरी हजूरी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान उतरा है ताकि इनको हील करे। ओ हालेलुया। खुदावंद तेरी इंस्टेंट, तेरी परफेक्ट और तेरी डिवाइन हीलिंग तेरे प्यारों के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हर किस्म की बीमारियां सर के बालों से लेके पांव के तलवा तक छोड़े इनको, क्योंकि इनकी जिंदगी पर रूहुल कुद्स का इख्तियार है। ये पाक रूह के घर हैं
और पाखरू के घर में कोई बीमारी, कोई बदबू ठहर नहीं सकती। यीशु के नाम से इनको डिलीवर कर दे खुदावंद। यीशु के नाम से हर किस्म का जादूगरी का असर आज अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से जाता रहे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हम हर किस्म के दुश्मन इब्लीस के नेगेटिव प्लान्स को, नेगेटिव प्रोपेगेंडास को, नेगेटिव उसकी हर किस्म की स्ट्रेटजीज को यीशु के नाम से कंडेम कर देते हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से रिजेक्ट कर देते हैं, यीशु के नाम से कमांड करते हैं इन प्यारों की जिंदगियों से जाती रहें और तेरे लोग यीशु के नाम से खुदावन डिलीवर किए जाएं। और रोको शानदार राबालांदा बाबा, हर किस्म की बीमारी मुकम्मल तौर पर निकले इनकी जिंदगियों से। सर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद आंखों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद देख नाक की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। कानों का बहरापन यीशु के नाम से जाता रहे। हर किस्म का गूंगापन यीशु के नाम से जाता रहे। तू अंधों को आंखें देता है, पैरों को कान देता है, गूंगों को जुबान देता है, कौड़ियों को पाक साफ करता है। खुदावंद तू मेरा शाफी, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। शिफा देना तेरी फितरत और लेना तेरे बच्चों का हक है। हर किस्म के दिल के अमराज यीशु के नाम से जाते रहें। हर किस्म के फेफड़ों के अमराज यीशु के नाम से जाते रहें। हर किस्म की किडनी फेलियर यीशु के नाम से जाती रहें। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, इन प्यारों के तमाम तर ऑर्गन्स यीशु के नाम से रीन्यू और स्ट्रेंथन होते चले जाएं। ओ खुदावंद इनकी बॉडीज के तमाम तर सिस्टम्स यीशु के नाम से परफेक्ट होते चले जाएं। और रोको शानदार राबालंदर, खुदावंद जिल्द की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, हर किस्म की रसौलियां, गिल्टियां यीशु के नाम से डिसअपियर हो जाएं। खुदावंद देख अगर कोई हड्डियों की बीमारी में मुब्तला है, कमजोर हड्डियों को यीशु के नाम से जोरावर कर दे। तू तो मुर्दा हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम से मौजज़े हो जाए, दिल की मुरादें पूरी हों। यीशु के नाम से वो भाई बहन जिनके पास औलाद नहीं, 2022 में यीशु के नाम से उनको माँ और बाप बनने का फजल बख्श दे। औलाद तेरी तरफ से मिरास और पेट का फल तेरी तरफ से अजर के तौर पर हमें मिलता है। तू हम पर मेहरबान होता है तो हम साहबे औलाद होते हैं। खुदावन जिस तौर पर तूने सारा को, जिस तौर पर तूने हन्ना को, अलिशबा को ब्लेस किया, 2022 में इन प्यारों को भी यीशु के नाम से ब्लेस कर। तू कल आज अब तक यकसा खुदा है। तू ही 5 को औलाद वाली बनाकर उसके दिल को शाद करता है। अगर कोई बेघर है, यीशु के नाम से अपना जाती बढ़ाकर 2022 में उसको दे दे। खुदावंद तू नामुमकिनात का खुदा, हल मुश्किलात और कादरे मुतलिक खुदा है। हम नहीं जानते किस तरह, कब, कैसे, लेकिन तू जानता है। यीशु के नाम से अपने घर दे। खुदावंद तेरे लोग तेरा नाम लेते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस कर। खुदावंद वो ऐसे लोग जिनके वीजों में रुकावट है, यीशु के नाम से रुकावटें यरू की दीवार के मानद गिरती चली जाएं। और तेरे लोग जहां पर जाना चाहते हैं तेरी मर्जी के मुताबिक मूव करें। इनके यहाँ बहुत सा रुपया पैसा हो, इनके यहाँ जिंदगी की हर नेमत हो यीशु के नाम से। और खुदावंद देख ऐसे लोग जो बेगुनाह जेलों में बंद है, खुदावंद मुकद्दस यूसुफ नबी की तरह उनको बहाल कर दे यीशु के नाम से।
2022 आजादी का, फतह का और शादमानी का साल हो उनके लिए। हम बेगुनाह कैदियों के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम से रिहाई हो। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, ऐसे भाई बहन जो हॉस्पिटल्स में हैं, यीशु के नाम से उनको हील कर, कमजोरियां, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। हम अपने शहर के लिए दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। रात बास जब दुआ करते हैं तो शहर सरफराज किए जाते हैं। लाहौर शहर को बरकत देते हैं, पंजाब को बरकत देते हैं, पाकिस्तान को बरकत देते हैं। हाँ खुदावंद, आला ओहदेदारों को बरकत देते हैं। मिन्नत करते हैं खुदावंद, ये मुल्क हमेशा सुलह सलामती और अमन का गहवारा बना रहे। जितनी नजरें बदहासुर हैं इस मुल्क के खिलाफ हैं, हम यीशु के नाम से उनको कैंसिल करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद, महंगाई को भी कंट्रोल कर, ताकि तेरे लोग इन्फ्लेशन से परेशान ना हो। आसमान के दरीचे खोल कर मुहैया कर यीशु के नाम से 2022 मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, हाँ खुदावंद मेरी कलीसिया के लिए, हमारी लीडरशिप टीम के लिए, इस विजन के लिए अबंडेंट ब्लेसिंग्स का साल हो यीशु के नाम से। और खुदावंद वहां जहां तक अभी खुशखबरी का पैगाम नहीं पहुंचा, इस विजन के वसीला से खुदावंद तेरे खादम पास्टर सालिक और सारी टीम के वसीला से वहां भी खुशखबरी का पैगाम पहुंचे और बहुत से लोग तौबा करें, यीशु को कबूल करें और निजात के हकदार बन जाए यीशु के नाम से।